السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں بتانے سے پہلے، بزرگان دین کے بتانے سے پہلے، کچھ واقعات بتانے سے پہلے اور آپ سننے سے پہلے، آئیے ہم اور آپ سب مل کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا، اپنے لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا و مولا، آمنہ کے لخت جگر، عبداللہ کے نور نظر، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں جھوم جھوم کر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ کشتی پر سوار کہیں جا رہے تھے۔ کشتی کے مسافروں کو حضرت سے تعارف نہ تھا۔ اس کشتی میں ایک سوداگر بھی تھا۔ اتفاقاً اس کا ایک موتی گم ہو گیا۔ اس نے غلط فہمی سے حضرت ذوالنون پر یہ الزام لگا دیا کہ موتی انہوں نے ہی لیا ہے۔ حضرت نے فرمایا، حاشا، کالا موتی میں نے نہیں لیا۔ وہ سوداگر کہنے لگا کہ موتی آپ ہی نے لیا ہے۔ وہ گستاخی سے پیش آنے لگا۔ حضرت ذوالنون نے اس وقت آسمان کی طرف منہ کر کے عرض کیا، الہی تو جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ ہزاروں مچھلیاں دریا سے اپنے منہ میں ایک ایک موتی لے کر نکل آئیں۔ آپ نے ان میں سے ایک موتی لے کر اس سوداگر کو دے دیا۔ کشتی کے لوگوں نے حضرت کی جب یہ شان اور کرامت دیکھی تو سب آپ کے قدموں پر گر گئے اور معافی چاہنے لگے۔ نون مچھلی کو کہتے ہیں۔ آپ کی اسی کرامت کی وجہ سے آپ کا نام ذوالنون سے مشہور ہو گیا۔ حضرات محترم، دراصل بات یہ ہے کہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ کشتی میں بیٹھ کر کہیں جا رہے تھے، تو اسی کشتی میں اسی شپ میں ایک سوداگر بھی تھا جس کا ایک قیمتی موتی تھا۔ وہ گم ہو گئی۔ تو اس نے کہا کہ اس شپ میں، اس کشتی میں جتنے بھی حضرات بیٹھے ہیں ان میں سے ایک اللہ کے مقبول بندے، ایک برگزیدہ بندے جن کا نام حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، ان پر اس نے الزام لگایا کہ وہ موتی آپ نے ہی لیا ہے۔ تو حضرات محترم، حضرت نے کہا کہ تمہاری موتی میں نے نہیں لی ہے۔ بار بار بتانے پر اس نے نہیں مانا کہ یہ کام آپ ہی کا ہو سکتا ہے، آپ ہی لیے ہیں۔ تو حضرات محترم، انہوں نے اپنے سر مبارک کو آسمان کی طرف اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے کہا کہ الہی تو جانتا ہے کہ اس کی موتی میں نے نہیں لی ہے، پر یہ الزام مجھ پر ہی لگا رہا ہے۔ اتنے میں دریا کی بہت ساری مچھلیاں اپنے اپنے منہ میں وہ موتیوں کو لے کر اوپر تیرنے لگی۔ تو حضرت نے انہی مچھلیوں میں سے ایک مچھلی کے منہ سے ایک موتی کو نکال کر اس سوداگر کو دے دیا۔ دینے کے بعد اس کشتی میں، اس شپ میں جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے، سارے کے سارے دیکھ کر حیران ہو گئے۔ اور یہ آپ کی کرامت دیکھ کر لوگ دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئے، اور سب نے معافی بھی طلب کی۔ اور آپ کو بتا دوں کہ حضرت کا یہی کرامت دیکھ کر حضرت کا نام ذوالنون، نون مطلب پڑ گیا، ذوالنون پڑ گیا، حالانکہ نون پڑ گیا اور نون کا معنی ہی ہوتا ہے مچھلی۔ اس کے بعد سب حضرت سے معافی طلب کی۔ تو حضرات محترم، جو اللہ کا ہو جائے ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے، اور اللہ کے مقبولوں کی یہ شان ہوتی ہے کہ دریا کی مچھلیاں بھی ان کا خادم و رضاکار ہوتی ہیں اور ان کے لیے قیمتی موتی لے کر حاضر ہوتی ہے۔ پھر وہ شخص جس کے ہاتھ کا ٹکڑا کو بھی لے کر اڑے، اور اگر ان اللہ والوں کی شان و عظمت کا انکار کرے اور ان سے
मसावत का दम भरे तो गौर फरमा लीजिए कि वह किस कदर बेखबर हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह वाले जो हैं बड़े नेक होते हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन आज हम झूठ पर झूठ बोले जाते हैं। अल्लाह वालों से जो है सारी मखलूक जो है मोहब्बत करती हैं। इंसान में जो है ज़्यादातर अल्लाह वालों से नफ़रत करते हैं, लेकिन बाकी अल्लाह तबारक व तआला के और कुछ जो मखलूक़ात हैं सब जो हैं, चाहे हैवान हो चाहे परिंदे हों, ये सब जो है अल्लाह वालों को पहचान लेते हैं। चाहे भले ही अल्लाह ताला ने उनको बोलने के लिए ज़बान नहीं दिया है, पर फिर भी अल्लाह ताला के वलियों को पहचान लेते हैं। वो अल्लाह ताला के नेक बंदों के जो है अल्लाह ताला के नेक बंदों को जो है पहचान कर उनका जो है खादिम बन जाता है। लेकिन आज हम इंसान होकर अक्ल व दिमाग, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने ज़बान जैसी नेमतों से नवाजा, अक्ल दिया, फिर भी हम जो है अल्लाह वालों को नहीं पहचानते हैं। आइए एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरंगी। एक नौजवान सरंगी बजा रहा था। इत्तफ़ाक़न वहाँ से हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह का गुज़र हुआ। आपने उसे सरंगी बजाते हुए देखा तो फरमाया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। उस नौजवान को गुस्सा आया और उसने सरंगी हज़रत बायज़ीद के सर पर दे मारी। वो सरंगी टूट गई और हज़रत बायज़ीद रहमतुल्लाह अलैह का सर भी फूट गया। हज़रत बायज़ीद खामोशी से घर तशरीफ़ ले आए और फिर उसकी सरंगी की कीमत और कुछ मिठाइयाँ उस नौजवान के पास भेजी और भेजा कि भाई, तुमने अपनी सरंगी मेरे सर पर मारकर तोड़ डाली, ये उसकी कीमत है और दूसरी ख़रीद लो। और मिठाई इसलिए भेज रहा हूँ ताकि उसके टूटने से जो तुझे रंज पहुँचा है वो दूर हो जाए। उस नौजवान ने जब ये बातें सुनी तो दौड़ता हुआ आया और हज़रत बायज़ीद के कदमों पर गिर गया और तौबा की और बहुत रोया। और भी कई नौजवान देखकर ताइब हो गए। हज़रात मोहतरम, आपको बता दूं कि हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहीं जा रहे थे कि एक शख्स जो है, एक नौजवान जो है सरंगी बजा रहा था। तो हज़रत बायज़ीद का गुज़र उधर से हुआ। जब उन्होंने देखा तो फरमाया, यानी पढ़ने लगे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ने लगे। तो उस नौजवान को गुस्सा आया और अपने सरंगी से हज़रत के ऊपर वार किया, जिसकी वजह से जो है वो सरंगी टूट गई और हज़रत का सर भी फूट गया। उसके बाद हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह उनसे बात किए बग़ैर, उनको कुछ कहे बग़ैर जो है अपने घर तशरीफ़ ले जाते हैं और अपने किसी एक आदमी से जो है कुछ पैसे, यानी उस सरंगी के जितनी कीमत होती है, पैसे और मिठाइयाँ लेकर उस शख्स के पास भिजा देते हैं और कहते हैं कि उनसे जाके कहना कि ये लो तुम्हारे सरंगी की कीमत और ये मिठाइयाँ तुम्हें इसलिए दी जा रही है ताकि सरंगी के टूटने पर जो तुम्हें तकलीफ़ हुई है, जो रंज हुई है दूर हो जाए, तुम्हें रंज तुम्हारे अंदर ना आए, तुम जो नाराज़गी तुम्हारे अंदर है वो दूर हो जाए, इसलिए मैंने मिठाई भेज रखी है और ये सरंगी के पैसे भी भेज रखी हैं। ये दोनों चीज़ें जब उस नौजवान ने देखा तो देखने के बाद ये देखा और सुना तो वो दौड़ता हुआ आता है। उसे जो है उसे खुद शर्म आने लगती है। शर्माता हुआ हज़रत के बारगाह में आता है, कदमों में गिर जाता है और तौबा करता है। तौबा करने के बाद वो नौजवान बहुत रोया। रोने के बाद और वहाँ पर बहुत सारे नौजवान थे, वो भी देखकर हज़रत को देखकर ताइब हो गए। अल्लाह के नेक बंदों के अखलाक बड़े बुलंद होते हैं। वो बुराई का बदला भी भलाई से देते हैं और
ये सब झलक है इस प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस प्यारी सी सीरत की कि हम सलाम उस पर के जिसने दुश्मनों को भी क़बाएँ दें, सलाम उस पर के जिसने गालियाँ सुनकर दुआएं दे। अल्लाह के मकबूल बंदों की कबूलियत व अज़मत का राज उसी इत्तबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मज़मर है, और वो अपने उन्हें पाकीज़ा अखलाक की बदौलत गुमराहों के रहबर बने और हम जैसों के लिए मौजब रशद व हिदायत साबित हुए। तो हज़रात मोहतरम, मैं आपको बता दूं, जो औलियाए किराम हैं वो सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही जो हैं उनके तरीक़े को अपना कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहन सहन को देखकर ही जो है वो सीखते हैं। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को फॉलो करते हैं, इसलिए वो इस तरह से दुनिया में ज़िंदगी को गुजारते हैं। तो हमें भी चाहिए कि उन औलियाए किराम के नक्श कदम पर चल कर हमें भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते को अपनाना चाहिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों को अपनाना चाहिए। लेकिन आज हम जो है अपनी ज़िंदगी को हीरो यानी जो फिल्मों में ड्रामों में नाचते हैं उनके जैसे अपनी ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश करते हैं। हालांकि ऐसा करने पर हज़रात मोहतरम हमें गुनाह हमें जो है जहन्नम की तरफ ढकेलता हुआ नज़र आता है, लेकिन हम जो है समझने की कोशिश नहीं करते हैं। तो हमें समझना चाहिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को फॉलो करना चाहिए। तो हज़रात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला से मेरी दुआ है कि अल्लाह हमसे जो भी ख़ताएँ हो रही है, या अल्लाह तेरे नबी के सदक़े से हमारे ख़ताओं को माफ़ फरमा और हमें सीधी राह पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इस दुनिया में जहाँ कहीं भी मुसलमान भाई परेशान हाल में है उनके परेशानी को दूर अता फरमा। इस दुनिया से जितने भी मरहूमीन गुज़र चुके हैं सब के गुनाहों को माफ़ फरमा कर उनको जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमा। हमें औलियाए किराम से मोहब्बत अता फरमा। या अल्लाह, तेरा हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल से मेरी दुआ को कबूल अता फरमा। और हज़रात मोहतरम, आपसे मेरी गुजारिश है कि हमारे अगर वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं, हम जो आपको स्टोरी बताते हैं, जो वाक़या, जो मुअज्ज़ज़ात, जो करामात आपको बताते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।